Hello students. So today we are going to start with the second chapter of your business studies, that is forms of business organization. In the first chapter we have already discussed about what is business, how we can do business, what are the characteristics of business, what can be the risk while doing the business, what are the main objectives of business, and there were certain features, certain points which you have to keep in mind before starting any of the business organization. Now the question comes in mind that in what form we should start, because there are various forms in which you can set up your business. So now let us discuss in depth about all of these. So as you can see here, there are various forms in which a business organization can work, and these are sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society, and joint stock company. So we are going to discuss about each one of them in very detail. Okay, so let's get started. So let us start with the first form, that is sole proprietorship. As the word suggests, it has two words. First is sole and second is proprietor. Sole means the single, the only, and proprietor is the owner. So it is a kind of business, it's a kind of business organization where there is only a single owner of the business. Generally, whatever we see like retail shops, hair salons, beauty parlors, cyber cafes, etc., these kind of all business are generally started with sole proprietorship form. Next, whatever the profit which the business is going to earn, or whatever the profits our business is making, and whatever losses are incurred, the proprietor is the only recipient of all. Means जितना प्रॉफिट होगा वो सब कुछ उसी प्रोप्राइटर को मिलेगा, और अगर लॉसेस होंगे तो वो भी उसे सिंगल ही बेयर करने पड़ेंगे. Talking about features, first feature is formation and closure. Setting up a sole proprietorship, starting a sole proprietor business is very easy because इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है. अगर आपको आज एक शॉप स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि आप एक अच्छी शॉप ओपन कर सकते हो, सो यू कैन सिंपली स्टार्ट. इसमें बहुत नेग्लिजिबल लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, या ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं. एंड सिमिलरली क्लोजर के लिए भी, जिस दिन आपका मन नहीं करेगा कि आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, यू कैन सिंपली क्लोज इट डाउन. सेकेंड फीचर इज़ लायबिलिटी. सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड in the sense कि if at any point of time the business assets are insufficient to meet the liabilities, meet the external obligations, then the personal belongings, the personal possession of the owner can also be sold to pay off the debts. मतलब जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जिसको हम बैंक्रप्सी बोलते हैं या इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, कि अगर किसी का बिजनेस डूब जाता है तो फिर उनके घरों की चीज़ों को भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं. दे स्टार्ट ऑक्शनिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी. सो दिस एक्चुअली हैपन्स कि अगर आपके बिजनेस के असेट सफिशिएंट नहीं होंगे तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को सेल करके भी ऑब्लिगेशंस पे किए जाएंगे. थर्ड फीचर इज सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट. ऑब्वियसली वो सिंगल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, तो जितने भी प्रॉफिट्स अगर बिजनेस में होंगे तो वो भी उसे ही मिलेंगे, और अगर लॉसेस भी होंगे तो वो भी उसे अकेले ही बेयर करने पड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल. डैम कंट्रोल, वेरी गुड कंट्रोल, नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर. Why? Because he is the single owner, he is the single manager, he is the single deciding factor. तो कोई भी मार्केट बेस्ड डिसीजन लेने के लिए ओनर को किसी थर्ड पार्टी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट फीचर इज़ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. यस, क्योंकि बिज़नेस में एक सिंगल ओनर है, सिंगल ही प्रोप्राइटर है जो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा है, तो कभी भी अगर वो बीमार पड़ जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, या उसका कोई फिज़िकल एलिमेंट हो जाए, तो ऐसी सारी कंडीशन में बिज़नेस की कंटिन्यूशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो सेपरेट एंटिटी. येस, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस का कोई रजिस्ट्रेशन जैसा नहीं है, बिज़नेस की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, तो लॉ के नज़र में हम बिज़नेस और उसके ओनर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं भी अलग आइडेंटिटी के नाम से रजिस्टर्ड एज सच नहीं होते.
Okay, next starting with the merits, number 1 is quick decision making. ऑब्वियसली क्योंकि आपको जो भी मार्केट बेस पर डिसीजन लेना है आपको किसी से पूछना नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, नोबडी विल ब्लेम यू फॉर योर डिसीजंस और नोबडी विल आस्क कि आपने ऐसा काम क्यों करा. तो कोई भी मार्केट अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसको एट अ टाइम ग्रैप्स करने के लिए ये बिजनेस फॉर्म सबसे बेस्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली बिजनेस सीक्रेट्स जो होते हैं मार्केट में अपनी अच्छी पोजीशन बनाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो छोटे छोटे हम बिजनेस ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और बहुत ज़्यादा सीक्रेट मैनर में रखी जा सकती हैं, क्योंकि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को पास ऑन नहीं करना. आप खुद ही डिसीजन मेकर हो, खुद ही बिजनेस के ओनर हो, तो वॉट एवर सीक्रेट्स यू आर हैविंग इनसाइड यू वो कभी भी दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव. ऑब्वियसली क्योंकि वो ओनर है जो खुद ही वर्क कर रहा है, ओनर सारा काम अपने एफर्ट्स लगा के खुद कर रहा है, तो जब भी कोई प्रॉफिट होगा या कोई रिवॉर्ड उसे एज सच बिजनेस में मिलने वाला होगा तो वो डायरेक्टली ओनर को ही मिलेगा. उसको किसी भी रिवॉर्ड को, किसी भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. ऑब्वियसली यहाँ पर बिज़नेस में क्या है कि जो भी ओनर है वो जो काम कर रहा है वो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है. लाइक हम हर किसी के अंदर एक ज़ील होती है किसी काम को करने के लिए. तो अगर ओनर यहाँ पर इंडिविजुअल सेंस पे काम कर रहा है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा है और जब उसका बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो होता है तो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि येस आई एम वर्थ इट, आई कैन डू समथिंग एंड आई एम डूइंग a business which is growing very well, so that feeling always be there in a sole proprietorship business. Next point is ease of formation and closure. डेफिनेटली आप बहुत इजीली इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ पे सेटअप कर सकते हो, और जब उसे क्लोज डाउन करने का मन करेगा तो आप उसे इजीली क्लोज भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं होती है. नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द डीमेरिट्स, नंबर 1 इज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज. डेफिनेटली क्योंकि ओनर सिंगल पर्सन है और जो भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो तो अपनी सेविंग्स से या अपने बचाए हुए कोई दूसरे फंड्स से या अपने बैंक से लोन लेकर के या जो भी वो फाइनेंसिंग के लिए अगर किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से भी बोरो करता है तो एक सिंगल पर्सन की बोरोइंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम होती है. एक पर्सन की सेविंग्स कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज से कम होती है. इसलिए हमेशा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न. डेफिनेटली क्योंकि सिंगल ही पर्सन है तो जिस दिन भी वो बीमार पड़ गया या जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई या उसको आउट ऑफ स्टेशन बाहर जाना है तो उतने टाइम पीरियड के लिए डेफिनेटली वो शॉप या वो बिज़नेस बंद रहेगा. जैसे कभी भी हम अपने नियरेस्ट शॉप में जाते हैं, एक आध हफ्ते के लिए शॉप बंद हुई तो पता चलता है कि वो अंकल अपने फैमिली मेम्बर की शादी में गए थे या वो अंकल कहीं घूमने चले गए थे, इसलिए 4-5 दिन से दुकान बंद है. तो दिस विल इफेक्ट द कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस. और यहाँ पर और जिस दिन अगर कभी ओनर की डेथ हो गई तो डेफिनेटली अगर उसके फैमिली में कोई अदर पर्सन नहीं है बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए तो वहाँ पर जाके भी बिज़नेस बंद हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर बिज़नेस के ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं हो पाते हैं बिज़नेस असेट्स को सेल करके तो ओनर की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी यूज़ करी जाएंगी to pay off these debts. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. डेफिनेटली क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है एंड ही इज़ डूइंग मल्टीटास्किंग, लाइक वो बिजनेस भी मैनेज कर रहा होगा, वो स्टॉक भी चेक कर रहा होगा, वो शॉप के मेकओवर, शॉप के लुक को भी चेक कर रहा होगा, अपने सामान को भी मेंटेन कर रहा होगा, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी बना रहा होगा, बिजनेस पॉलिसीज़ डिसाइड कर रहा होगा. सो मल्टीटास्किंग में इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि एक पर्सन सारी स्किल्स में एफिशिएंट हो. सो डेफिनेटली कोई ना कोई मैनेजरियल स्किल ऐसी होगी जिसमें वो बंदा लैक कर रहा होगा. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये वो फॉर्म होता है जहाँ पर पूरा बिजनेस ओन करना, कंट्रोल करना एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करती है. मतलब एक कंप्लीट फैमिली होगी जिसमें बहुत सारी जनरेशन्स होंगी, लाइक दादाजी एंड पापा देन उनके बच्चे. तो इस तरह से कंप्लीट जनरेशन फैमिली की होती है और वो इस पूरे बिज़नेस को कंप्लीट करते हैं, इस बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं, रन करते हैं.
बेसिकली बिजनेस में सारे डिसीजन मेकिंग कर्ता के हाथ में होती है एंड कर्ता इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली एंड बाकी मेंबर्स जो है उन्हें को पार्टनर्स कहते हैं, जिनका अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी राइट होता है, जितना उनका पार्ट होता है, वो उतने पार्ट के लिए लायबल होते हैं। दिस बिजनेस इज गवर्नड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये आप नोट कर लेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और हिंदू लॉ के अंडर में ये पूरा बिजनेस गवर्न होता है। इट मीन्स यू कैन से दैट इट इज अ रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज डन अंडर द एक्ट. Also, there are two types of system for this Hindu family business. One is the Daya Bhaga system that is prevailing in West Bengal, only in West Bengal. यहाँ पर फैमिली बिजनेस में मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स दोनों बराबर को पार्टनर्स होते हैं, दोनों का उसमें पार्ट रहता है. एंड अदर देन दैट मिताक्षरा इज द सेकेंड सिस्टम विच इज़ प्रिवेलिंग अदर देन वेस्ट बंगाल इन होल ऑफ द इंडिया, जिसमें फीमेल मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं, ओनली मेल मेंबर्स आर ट्रीटेड एज द को पार्टनर ऑफ द बिजनेस. Now let's talk about the features. Number 1, formation. So formation हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कोई अलग से रूल या अलग से रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप किसी भी ऐसी फैमिली में बर्थ लेते हो जिसका ऑलरेडी एक हिंदू बिजनेस चल रहा है, फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो आप भी ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाओगे. एज जिसमें हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स में या हमारी बहुत सारी कम्युनिटी में हम लोगों को देखते हैं ना, जिनके फैमिली बिजनेस होते हैं, उनके दादाजी भी वही कर रहे हैं, पापा भी वही कर रहे हैं, अब वो बच्चा है तो वो भी बड़े होकर के उस फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करेगा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी. यहाँ पर जो करता है दैट इज एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अदर देन मेंबर्स लाइक को पार्टनर्स जितने हैं उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू देयर शेयर इन दी फैमिली. लाइक उनका जितना भी पार्ट उस फैमिली के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है, सो दे आर लायबल अप टू दैट पार्ट ओनली. Next feature is control. Definitely क्योंकि head of the family that is कर्ता वो सबसे बड़े हैं, डिसीजन मेकर वही है, तो यहाँ पर कंट्रोल भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, कर्ता का होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर मेंबर. फैमिली में जो भी माइनर मेंबर होगा, माइनर इज़ व्हाट, बिलो 18. सो जनरली हम बिजनेस फर्म्स में या अगर हम लीगल पैटर्न की बात करें तो 18 बिलो माइनर पीपल को कंसिडर नहीं किया जाता. बट इन हिंदू फैमिली बिजनेस माइनर भी बिजनेस का पार्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी. यहाँ पर कंटिन्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते जाते हैं, क्योंकि जो अभी करता है वो कंट्रोल कर रहे हैं. उनकी डेथ के बाद में जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, ही विल बिकम करता, ही विल कंट्रोल द बिजनेस आफ्टर हिज डेथ. नेक्स्ट जनरेशन का जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. सो इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस. नेक्स्ट मेरिट्स डिस्कस करते हैं थोड़े से. तो नंबर 1 इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल. यहाँ पर कंट्रोल जो है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो हेड ऑफ द फैमिली है जो इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं. इसके साथ साथ इंटरफेरेंस ऑफ मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मेंबर्स जो है डिसीजन मेकिंग में, ये भी बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप फैमिली की किसी और चीज़ों के बारे में डिस्कस करके कोई भी कंक्लूजन विड्रॉ करते हो, सिमिलरली बिजनेस मैटर्स को भी वैसे ही डील किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. डेफिनेटली एक कर्ता की डेथ हो जाने के बाद नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर उस बिजनेस का केयर टेकर बन जाता है, बिजनेस का कंट्रोलर बन जाता है. तो यहाँ पे बिजनेस की कंटिन्यूटी पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कर्ता की सिर्फ लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रिमेनिंग सारे को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू देयर शेयर इन दी फैमिली. नेक्स्ट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. डेफिनेटली आप एक फैमिली बिजनेस में वर्क कर रहे हो यार, तो डेफिनेटली आप जो भी सीक्रेट्स है, बिजनेस की पॉलिसीज़ है, बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो कभी लीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जैसे हर चीज़ के लिए अपनी फैमिली की तरफ डिवोटेड और लॉयल हो, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में भी उतने ही लॉयल एंड डिवोटेड रहोगे. Let's talk about demerits. Number 1 is limited resources. लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि जो भी फैमिली बिजनेस है वो जनरली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही चलाए जाते हैं. मतलब जितना भी आपके पास एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी रखी होगी, आप उसी को एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानते हो.
तो अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट अगर वो प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, फंड्स कम है, तो डेफिनेटली द बिजनेस विल फील द लैक ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। ये होगा क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली ही करता है जो सारे बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, तो समटाइम्स इट मे हैपन कि वो डिसीजन जो शायद कर्ता का डिसीजन बाकी घर वाले ना माने, बट क्योंकि वो बड़े हैं फैमिली में तो उनकी बात को वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता के लिए जितने भी ऑब्लिगेशंस आएंगे वो हमेशा लायबिलिटी के साथ अनलिमिटेड ही होंगे, मतलब कर्ता के पार्ट का सारा जो भी उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो सेल करी जा सकती है अगर कोई ऑब्लिगेशन पे करने से रह गया तब। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सेम एज दी सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि यहाँ पर भले ही फैमिली पीपल है बट मेन मैनेजमेंट किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में है, तो विच यू कैन रिलेट कि ये भी समवॉट सोल प्रोप्राइटर जैसा हो गया। तो यहाँ पर भी कर्ता के पास सारे मैनेजरियल स्किल्स हो, उसको हर चीज़ का नॉलेज हो, ये कहना ज़रूरी नहीं है। Next form of business is partnership. Definition of partnership is, it is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. This is the proper definition of partnership कि ये वो relation है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन अग्री करेंगे कि वो एक बिज़नेस को चलाएंगे और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, एंड वहाँ पर सारे मिलकर के भी काम कर सकते हैं या कोई एक पर्सन सबके बिहाफ में भी काम कर सकता है। टॉकिंग अबाउट फीचर्स, नंबर 1 इट्स फॉर्मेशन। सो पार्टनरशिप जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होती है, मतलब इसके लिए भी एक प्रॉपर लॉ है हमारे पास। एंड लीगल एग्रीमेंट करना, लीगल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, पार्टनर्स के बीच में जितने अग्रीमेंट होंगे उनको रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में रखना, ये सारा कुछ लीगलाइजेशन जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ही फॉलो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लायबिलिटी। यहाँ पर भी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन हेड ऑफ द बिजनेस या डोमिनेंस किसी का नहीं होता, ऑल आर इक्वल, सो ऑल आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी विद देयर शेयर्स। Next point is risk bearing. As already stated in the definition that they are going to share the profits of the business in the agreed ratio or whatever they have decided. So similarly जब वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे तो बिजनेस में अगर कभी कोई लॉस होता है, कोई रिस्क आता है, तो वो रिस्क भी उनके उसी शेयर में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट से ली जाती है। मीन्स डेली कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो डिसीजन में हो जाता है कि ओके फाइन ये डिसीजन ये ले सकता है, एंड अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो वहाँ पर हर पार्टनर की कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूटी। यहाँ पर भी अगेन कंटिन्यूशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि वो पार्टनर ही है जो वर्क कर रहे हैं, और कभी भी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर होकर के चला जाता है, किसी पार्टनर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे भी बिजनेस कंटिन्यूटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंबरशिप। यहाँ पर बेसिकली हम 2 पार्टनर्स से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्दर देयर आर लिमिट्स, 10 पार्टनर्स अप टू फॉर अ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 पार्टनर्स फॉर अदर काइंड ऑफ बिजनेस। उससे ज़्यादा बड़े अगर नंबर ऑफ पीपल हो गए तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड एज अ कंपनी, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ये पार्टनरशिप की एक सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एवरी पार्टनर इज़ अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स ऑफ हिज फर्म। इसका मतलब क्या, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, बी अगर कोई वर्क करता है और कल को उसके वर्क से कोई ऑब्लिगेशन बिजनेस पर आता है, सो ए विल ऑल्सो बी लाइबल टू पे दैट ऑब्लिगेशन, क्योंकि यहाँ पर बी ने एज अ एजेंट काम किया है। एज अ एजेंट मतलब जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि एक मालिक होता है और एक उसका सर्वेंट होता है, इधर इज द ओनर एंड द सर्वेंट।
जो ओनर सर्वेंट वाला रिलेशन है, दैट इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. सो वॉट एवर वर्क, वॉट एवर टास्क अ एजेंट डज इज ऑलवेज ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल. अगर हम किसी शॉप से कोई सामान लेते हैं और अगर दुकान में जो काम करने वाले लड़के हैं उसने सामान खराब दिया, तो आप जाकर के उसको डांटोगे या शॉप ओनर को डांटोगे? डेफिनेटली विल कंप्लेन टू द शॉप ओनर, क्योंकि उसकी शॉप के पर्सन ने हमें खराब सामान दिया है. सो एजेंट जो भी काम करता है वो हमेशा प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सिमिलरली यहाँ पर दूसरा पार्टनर भी उसके एज अ एजेंट वर्क कर सकता है एंड एज अ प्रिंसिपल वो किसी और को बाइंड भी कर सकता है. ठीक, क्लियर हुआ? So mutual agency is the important characteristic of partnership. If there is no mutual agency, then we cannot term it as a partnership form of business. Now let us discuss about some of the merits of partnership. Number one, ease of formation and closure. Again, partnership को फॉर्मेट करना बहुत आसान है एंड उसे क्लोज करना भी उतना ही ईजी है. वी कैन से कि हाँ इस पे पार्टनरशिप एक्ट का रेगुलेशन होता है, बट अगेन लीगल फॉर्मेलिटीज़ के टर्म्स में पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज़ उतनी नहीं होती है. हम उसे रजिस्टर करा भी सकते हैं और रजिस्टर नहीं भी करा सकते. तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं एंड उसे क्लोज डाउन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि हमने सोल प्रोप्राइटर में देखा कि सिंगल पर्सन इज़ नॉट एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. सो अब जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग स्टॉक, you are very good at decorating your shop, and you are very good at handling customers, but you don't know how to manage accounts and you don't know how to deal with the suppliers and dealers. So क्या करोगे अब आप ऐसे पर्सन को अपने साथ पार्टनर बनाओगे जो अकाउंटिंग में बहुत अच्छा होगा और जिसको सप्लायर्स डीलिंग करना या डीलर्स से बात करना बहुत अच्छे से आता होगा. So now what you have done, you have actually divided that managerial skills into two people. So यहाँ पर जो decision making है वो काफ़ी balanced हो जाती है, क्योंकि जो managerial skills आपके पास नहीं होंगी वो other person आपको easily guide कर पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर फंड्स. डेफिनेटली एक पर्सन जितने फंड्स नहीं ला पा रहा था, अब वो 2 पर्सन लेकर आएंगे, 3 लेकर आएंगे, 4 लेकर आएंगे. यू कैन गो अप टू 20 पीपल इन अ पार्टनरशिप. सो इमेजिन कि 20 लोग अगर मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कंपैरेटिवली फंड्स सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा ही होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क. अगेन जब आप प्रॉफिट्स डिवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि हमने मेहनत करी और प्रॉफिट्स हमारे डिवाइड हो गए, बट इन केस ऑफ लॉसेस इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा लॉस भी होगा तो वो सिंगल पर्सन पे बर्डन नहीं होगा, सारे पार्टनर्स आपस में उसे डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. यहाँ पर सीक्रेसी भी काफ़ी हद तक हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या उसके जो बिज़नेस सीक्रेट्स है, बिज़नेस पॉलिसीज़ है, फाइनल अकाउंट्स है, इनको कहीं भी हमें पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती, या हमें किसी पब्लिक को, किसी जनरल पर्सन को उसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे बिज़नेस कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. तो इसलिए पार्टनरशिप में सीक्रेसी भी काफ़ी एक्सटेंड तक मेंटेन किया जा सकता है. Now let us talk about some of the demerits. Number 1 is the unlimited liability. Similarly, like sole proprietorship, यहाँ पर भी जो भी पार्टनर्स वर्क करेंगे साथ में उन सब की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है. मतलब अगर किसी दिन पार्टनरशिप को कोई लॉस होता है, कोई ऑब्लिगेशन पे करने में बिजनेस असेट्स कम पड़ जाते हैं, तो पार्टनर्स में सबकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को सेल किया जा सकता है उन ड्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. अगेन डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में रिसोर्सेज ज़्यादा है, बट अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें, एक बड़े बिजनेस से कंपेयर करें, तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो फंड लेकर के आएंगे वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं, एक लार्ज स्केल ऑपरेशन को सफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी.
डेफिनेटली, क्योंकि वही पार्टनर है, वही पर्सन्स है, तो अगर किसी दिन वो बीमार पड़ गया, उसकी डेथ हो गई, वो रिटायर होकर के चला गया, तो पार्टनरशिप बिजनेस की कंटिन्यूशन पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जनरली पार्टनरशिप बिजनेसेस पर लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि कोई पता नहीं है किसी को। अगर आपके आज बिज़नेस अच्छा चल रहा है और 1 साल बाद अगर आप दोनों के आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आपके किसी पॉइंट पर डिसीजंस मैच नहीं करे, तो वहाँ पर जाकर के पार्टनरशिप टूट जाती है और बिज़नेस बंद हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। और उस कंडीशन में पार्टनरशिप का तो जो लॉस है ही, बट साथ में जितने डीलर्स या सप्लायर्स या कस्टमर्स जो भी उस पार्टनरशिप बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, उनको भी उतना ही इफेक्ट होता है। इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस थोड़ा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेसेस के लिए कम रहता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली, क्योंकि आप दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हो, दो अलग अलग पर्सनस हो, जिनके बिजनेस आउटलुक्स बहुत डिफरेंट है, जिनका हर काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल है कि आप लोगों के आपस में ओपिनियंस मैच करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। समटाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जहाँ पर आप कुछ और बोलोगे और सामने वाला आपका पार्टनर कुछ और बोलेगा, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने की सिचुएशन अराइज होती है।